Hello students. So in the last lecture we have seen the image insertion and video insertion in the HTML web page. So let us study about the HTML links in today's lecture, and we will also see the frames in frames and frame set in today's lecture. So let's start with the HTML link. So what is a link? So it allows us to move from one page to another, or it is used for jumping off pages. जैसे किसी एक पेज से हमें दूसरे पेज तक जाना है तो क्या होता है, उस दो पेज पे हम we have to establish a link such that when we click something, a text or a button or any image, then it will be redirected to the next page. So let us see the HTML. Links are found in nearly all web pages, and links allows user to click their way from page to page. So what is link? So let us assume that this is one page and this is the second page, and here is a link. And when we click this text, that is link, then what will it does? It will redirect us to the second page. This is the second page. So HTML links are hyperlinks. That means that what is hyperlink? You can click on a link and jump to another document, and when you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn into a little hand. तो हम लोग कभी कभी देखे होंगे कि जब कहीं पे लिंक रहता है एंड वी यूज़ टू मूव अ कर्सर टू देयर, तो ये क्या हो जाता है, एक स्मॉल हैंड, मतलब जो 5 फिंगर्स होते हैं उस टाइप से ये डिपिक्ट करने लगता है. So a link does not have to be text. It can be an image or any other HTML elements. तो HTML elements that means अब बटन हो सकता है, एक इमेज हो सकता है. तो जैसे बटन को क्लिक किए तो वो रिडायरेक्ट कर देता है नेक्स्ट पेजेस पे. सिमिलरली इमेज पे भी क्लिक करने पे it will redirect us to the second page. So let's move on to the syntax of link. So the HTML A tag defines a hyperlink. So what is this A tag? This is the anchor tag. We have studied this anchor tag in our previous lectures, and it has the following syntax: A href. Href is the attribute of an anchor tag, which attribute में क्या होता है कि it keeps the URL or the link of the upcoming page or the destination page. तो क्या होता है A href. And if we want to open google.com, www.google.com, then what we will write? We will write www.google.com inside this href attribute. So the most important attribute of the A, that is the anchor element, is the href attribute, which indicates the link's destination. So what it indicates? It indicates the link's destination. Destination मतलब कि कहाँ पे redirect होके वो link जा रहा है. So the link text is the part that will be visible to the reader, and clicking on the link text will send the reader to the specified URL. So let us take an example. कि अगर हमको google.com पे visit करना है तो हम क्या करते हैं? We will write anchor tag, and in the attribute href equal to, I will insert the URL, the complete URL of the destination page, that is google.com. तो https://www.google.com/. So and we will write a text. तो ये क्या होगा कि जो सोर्स पेज है, यानी कि जो फर्स्ट पेज है, वहाँ पे what message is been printed, वहाँ पे लिखा हो रहेगा visit this google.com. और जब हम इस visit google.com पे जब क्लिक करेंगे, then it will redirect us to the https://www.google.com पे. ठीक है. So by default links will appear as follow in the browsers. तो ये कलर्स अलग अलग कलर्स में दिखते हैं. and unvisited link is underlined and blue. अनविजिटेड लिंक मतलब कि वो डिफाइन किया हुआ, बट अभी तक उसमें एक बार भी वी हैवेंट क्लिक्ड, या फिर उस पर हम एक बार भी क्लिक करके दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट नहीं हुए. सो द अ विजिटेड लिंक इज़ अंडरलाइंड एंड पर्पल. तो जब वी क्लिक दैट लिंक एंड द लिंक बिकम्स इन द कलर पर्पल एंड इट इज़ ऑल्सो अंडरलाइंड. एंड एन एक्टिव लिंक इज़ अंडरलाइंड एंड रेड. तो किसी लिंक को क्लिक करके अभी हम ओपन किए हुए हैं टैब पे, तो वो लिंक का कलर क्या होगा? इट्स कलर इज रेड. सो लेट्स मूव ऑन टू द टारगेट एट्रीब्यूट.
टारगेट एट्रीब्यूट आखिर होता क्या है? So by default the linked page will be displayed in the current browser window, and to change this you must specify another target for the link. तो क्या होता है कि जो करंट ब्राउज़र है जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स और द गूगल क्रोम, सो इन दैट द लिंक पेज विल बी डिस्प्लेड, एंड वी हैव फॉर चेंजिंग दैट वी मस्ट हैव टू स्पेसिफाई अनदर टारगेट फॉर द लिंक। ओके, तो जैसे कभी होता है कि वी आर यूजिंग मोजिला फायरफॉक्स एंड व्हेन वी आर क्लिकिंग some link over there, then the link is opened in the same browser in next tab or in the current tab also. बट कहीं कहीं पे क्या होता है कि जब अगर मोजिला फायरफॉक्स वी आर यूजिंग एंड when we are clicking the link, then it opens that link in the Opera browser or in the Google Chrome. तो वो क्या होता है, वो टारगेट एट्रीब्यूट से सेट होता है। तो कैसे सेट करते हैं, लेट अस सी दैट। तो द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। क्या स्पेसिफाई करता है, वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट, एंड द टारगेट एट्रीब्यूट्स कैन ऑल्सो हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। तो ये क्या है, सेल्फ, ब्लैंक, पेरेंट एंड टॉप, ये चार उसका एट्रीब्यूट का वैल्यूज होता है। सो व्हाट आर दिस वैल्यूज, लेट अस सी दैट। सेल्फ डिफॉल्ट एट्रीब्यूट होता है एंड इट ओपन्स द डॉक्यूमेंट्स इन द सेम विंडो और टैब एज इट वाज क्लिक्ड। तो जैसे जिस ब्राउज़र में यूज़ करें उसी के सेम विंडो या सेम टैब पे ही वो खुल जाता है। एंड ब्लैंक ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो और टैब, इट ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द न्यू विंडो। एंड पेरेंट टैब opens the document in the parent frame, and in the top attribute opens the document in the full body of the window। ठीक है, तो एग्जांपल एक देख लेते हैं ब्लैंक का। जो ब्लैंक में क्या होता है, इट ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द न्यू विंडो। तो न्यू विंडो में कैसे ओपन करना है अगर किसी लिंक को, तो वी यूज़ टू राइट ahref@http.google.com। ठीक है, अब इसके बाद व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट डबल कोट्स एंड इनसाइड दैट वी विल राइट टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। ओके, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। तो ब्लैंक क्या होगा, ये डबल कोट्स में रहेगा, एंड आफ्टर दैट वी विल क्लोज द एंकर टैग एंड राइट सम टेक्स्ट सच दैट वी कैन क्लिक ऑन दैट टेक्स्ट टू मूव टू द डेस्टिनेशन पेज। ठीक है, तो लेट अस सी the two types of URLs, the absolute URL and the relative URL। तो absolute URL क्या होता है, full URL होता है, that means https://www इसमें होना चाहिए। एंड इन द relative URL it does not has https www डॉट, और इसके आगे का दोनों में मस्ट है प्रेजेंट होना। सो एग्जाम्पल बिलो इज यूजिंग एन एब्सोल्यूट URL, फुल वेब एड्रेस इन द href एट्रीब्यूट एंड अ लोकल लिंक टू अ पेज विद इन द सेम वेबसाइट। मतलब किसी एक वेबसाइट में ही एक और कोई व्हाट इज़ अ वेबसाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट कि एक वेबसाइट क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। तो बहुत सारा वेब पेज का एक कॉम्बिनेशन को हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। तो उसी वेबसाइट में अगर किसी एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है विद इन अ सेम वेबसाइट, तो व्हाट वी विल यूज़ द रिलेटिव URL। सो इन दैट वी डू नॉट हैव टू यूज़ द http://www, ओनली वी हैव टू राइट the text or the image or the page name which we have to use। तो यहाँ पे देख लेते हैं एब्सोल्यूट का एग्जांपल क्या होता है। एब्सोल्यूट में वी हैव टू राइट ऑल द https www https www and then we will see this we will link the page from one page to another। and inside the relative URL what we have to write, we do not have to write https, क्योंकि ये जो HTML image.asp ये जो पेज है, वेब पेज है, वो क्या है, सेम वेबसाइट का, विद इन द सेम वेबसाइट का, जिस वेबसाइट पे हम लोग अभी एक वेब पेज बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक वेब पेज है मान लीजिए X एंड इसके अंदर वी आर हैविंग ABC वेबसाइट, तो A से B को अगर लिंक करना है तो क्या करना है, ये 3 वेब पेजेस है ABC, और A वेब पेज से B वेब पेज पे जाना है। तो व्हाट वी विल राइट, वी डू नॉट हैव टू राइट https, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे b.aspx और b.php, जो भी वेब पेज है। ठीक है, अंडरस्टूड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, वी विल स्टार्ट HTML फ्रेम इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।